हे एवरीवन, वेलकम टू तरु टोट्स। मेरा नाम है प्रगति और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मृदंग का चैप्टर 3 जिसका नाम है अ फार्म, FARM फार्म। फार्म बोलते हैं खेत को, एक ऐसी जगह जो यूज़ की जाती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी कि फसल उगाने के लिए और पालतू जानवरों को रखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow E-I-E-I-O, which means मेरे प्यारे दादाजी का एक खेत था। ग्रैंडपा यानी कि दादाजी, हैड था फार्म विच मीन्स खेत, एंड ऑन दैट फार्म और उस खेत में ही हैड अ काउ, उनके पास एक गाय थी। काउ बोलते हैं गाय को। With a moo here and a moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. Now this cow says, cow कैसे करती है? moo moo। यहाँ here means यहाँ भी moo moo, there means वहाँ भी moo moo, here there everywhere यहाँ वहाँ हर जगह there is a moo moo। गाय कैसे करती है? moo moo। तो my dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. We can see in this picture that there is the grandpa. Here the girl is saying, my dear grandpa had a farm E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow E-I-E-I-O, with a moo here and a moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. Now let's see next. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen E-I-E-I-O. मेरे प्यारे दादाजी का एक खेत था और उस खेत में उनके पास मुर्गी थी। We can see here as well, with a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. Now ये hen कैसे करती है? cluck cluck। कैसे करती है? cluck cluck। here यहाँ भी cluck cluck, there वहाँ भी cluck cluck, here there यहाँ वहाँ everywhere हर जगह cluck cluck. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. Okay children, now you have to replace the animals with their sounds and continue the rhyme. Use the sound of animals from your language. For example, the cat says meow meow. Now we will replace this animal. अब हम इस animal को replace करके कुछ और रखते हैं. Let's put the cat here. So we will say, my dear grandpa had a farm E-I-E-I-O, and on that farm he had a cat E-I-E-I-O, with a meow meow here and a meow meow there. Here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. I hope you guys enjoyed this poem. Now let's move ahead with the exercise work. Now color the farm and name the animals in the farm. Use the help box. Now children, we have to color this picture और हमें इन सभी animals के नाम भी बताने हैं, जिसके लिए हमारे पास एक help box भी given है. Now let's start naming the animals. Let's see, where is the cat? So here is this cat. Next we have cow. Here is the goat. Here is the pig. Here are some hen. Here is the cock. And these are some sparrows. So children, now let's see their Hindi name. Cat means billy, cow means गाय, goat means बकरी, pig means सुअर, hen means मुर्गी, cock means मुर्गा, sparrow means गौरैया। तो चिल्ड्रन, आपको भी इस पिक्चर को अपनी बुक में कलर करना है और इन सभी एनिमल्स के जो नाम है वो लिखने हैं और याद करने हैं।
दिस इज़ द वर्कशीट विच आई एम गिविंग टू यू है, जिसका नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स. नाउ चिल्ड्रन, एनिमल्स बोलते हैं पशु को और बर्ड्स बोलते हैं पक्षी को. तो क्या आप मुझे इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं? दो आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड यू मस्ट नोन दिस फैक्ट. बर्ड्स बोलते हैं पक्षी को जो आसमान में उड़ते हैं या जिनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं. दो सभी पक्षी नहीं उड़ते, बट हाँ, ज़्यादातर पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं. और एनिमल्स एक अलग से कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे क्रिएचर्स आते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पे भी रहते हैं. बाकी हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. माई नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी. सो हेयर इज़ अ जग्गू जो कहाँ रहता है? नागपुर में रहता है और जो हमें अपने साथ बुला रहा है. तो चलिए चलते हैं. He is saying that I will tell you about the animals that live near my house. ये हमें उन सभी एनिमल्स के बारे में बताने वाला है जो उसके घर के पास रहते हैं. नियर मतलब पास, हाउस मतलब घर और लिव मतलब रहना. तो जग्गू हमें उन सभी एनिमल्स के बारे में बताने वाला है जो उसके घर के पास रहते हैं. चलिए देखते हैं. सो लेट्स से हाई टू जग्गू. से हाई एवरीवन. ओके, लेट्स मूव अहेड. दिस इज़ अ डॉग, इट लीव्स नियर द गेट. जग्गू ने हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस डॉग से जो कहाँ रहता है? इसके गेट के पास. नियर मतलब पास, नियर मतलब पास, और पास का अपोजिट क्या होता है? फार, विच मीन्स दूर. FAR, फार. नाउ these are cats, they jump up and down in the veranda of my house. जग्गू हमें बता रहा है कि ये कैट्स है. Now we can say there are two cats और ये जंप करती है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछलती है. और किस जगह? उसके घर के वरामदे में. वरांदा मीन्स आंगन, जिसको हिंदी में बरामदा भी कहते हैं. Now this is a cow, it eats grass. और ये क्या है? एक काऊ जो क्या खाती है? ग्रास, घास खाती है. और कैन यू टेल मी व्हाट काउ गिव्स अस? यस, इट गिव्स अस मिल्क. एंड हाउ मेनी ऑफ यू डू लाइक टू ड्रिंक द मिल्क? सो रेज योर हैंड इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स सी. दिस इज अ रैट. ये क्या है? एक चूहा. द रैट इज वेरी स्मॉल. ये चूहा बहुत ही स्मॉल, छोटा है. द कैट चेजेस द रैट. और ये कैट, ये बिल्ली इस रैट को चेज कर रही है. चेज यानी कि पकड़ना. और पकड़ के बिल्ली क्या करती है? इट विल ईट द रैट. Okay, these are monkeys. They swing and jump in the trees. और ये क्या है? monkeys, बंदर. ये क्या करते हैं? swing, झूलते हैं, और jump, कूदते हैं. किस पर? पेड़ों पर. Next, there is a field beside my house. उसके घर के बगल में, beside यानी कि साइड में, एक field है, एक खेत है. There are a few snakes in it. जहाँ क्या है? कुछ snakes. Can you see these snakes? इन सांप को देख सकते हैं आप? You have to walk carefully in the field. आपको उस फील्ड में, उस खेत में बहुत ध्यान से चलना होता है. Carefully means बहुत ध्यान से. And now I will also tell you about the birds near my house. तो चिल्ड्रन, यहाँ जग्गू ने हमें उसके घर के पास रहने वाले सभी जानवरों के, सभी एनिमल्स के बारे में बताया. नाउ यू ऑल्सो हैव टू टेल मी कि इन सभी एनिमल्स में से आपके घर के पास कौन सा एनिमल रहता है. तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. और अब हम देखते हैं बर्ड्स को, कि जग्गू के घर के पास कौन कौन सी बर्ड्स रहती है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस. तो जग्गू इज सेइंग कि अब वो हमें उन बर्ड्स के बारे में बताएगा, उन पक्षियों के बारे में बताएगा जो उसके घर के पास रहते हैं. दिस इज़ अ क्रॉ, इट इज़ ब्लैक इन कलर. ये एक क्रॉ है. क्रॉ मीन्स कौआ, जो उसके घर के पास रहता है और जिसका रंग कैसा है? ब्लैक, काला रंग है. दिस इज़ अ पिजन, इट इज़ ग्रे इन कलर. और ये क्या है? पिजन. पिजन मीन्स कबूतर, जिसका कैसा कलर है? ग्रे कलर है. नेक्स्ट, दिस इज़ अ स्पैरो, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड. और ये स्पैरो है. तो चिल्ड्रन, आपने कभी अपने दरवाजे पर या खिड़की पर स्पैरो को देखा है, जो बहुत ही छोटी सी होती है और जिसको हिंदी में कहते हैं गोरैया. नेक्स्ट, दिस इज़ अ पैरट, इट इज़ ग्रीन एंड हैज़ अ रेड बीक. और ये एक पैरट है. चिल्ड्रन, पैरट ग्रीन कलर का होता है और जिसकी बीक, बीक यानी कि चोंच, जो आगे का मुंह का हिस्सा होता है, वो रेड कलर का होता है. एंड नाउ दिस इज़ अ पिकॉक, इट हैज़ मैनी कलर्स. और ये क्या है? एक पिकॉक,
जिसको हिंदी में कहते हैं मोर, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड भी है, जिसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। क्या आपने भी मोर के पंख देखे हैं? तो से यस इन द कमेंट सेक्शन। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड जग्गू इज सेइंग कि उसे एनिमल्स और बर्ड्स से बहुत प्यार है। तो चिल्ड्रन, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स? रेज योर हैंड। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स दैट वी जस्ट लर्न। VERANDAH, वरांदा। वरांदा बोलते हैं बरामदे को, जो हमारे घर के बाहर की तरफ एक खुली जगह होती है। COW, काओ, विच मीन्स गाय। RAT, रैट, विच मीन्स चूहा। SPARROW, स्पैरो, विच मीन्स गौरैया। CROW, क्रॉ, क्रॉ मीन्स कौआ। नेक्स्ट PIGEON, पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। SNAKE, स्नेक, स्नेक मतलब सांप। FIELDS, फिल्ड्स, फिल्ड्स बोलते हैं खाली जगह, खेत। PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। BEAK, बीक, बीक होती है चोंच। तो कैन यू टेल मी द कलर ऑफ पैरट्स बीक? यस, इट्स रेड। So children, let's move ahead. Now, do you know some animals live in the jungle? क्या आपको पता है कुछ एनिमल्स जंगल में भी रहते हैं? So let us see their pictures and name them. TIGER, tiger. LION, lion. ELEPHANT, elephant. So these are some animals that are found in the jungle. ये जानवर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? Either in jungle या फिर zoo में. Let's see the B part. Say the word rat. Say it again. So let's say rat. Now say it again, rat. Notice that the last sound of the word rat is T. हमने देखा कि rat के जो last sound है, rat में जो last sound हमें आ रहा है वो T का है। तो अब ऐसे ही हमें इन words को भी read करना है और इनके last sound को बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास है CAP, cap, P, P, last sound है P, JAM, jam, M, last sound is M. Next PEN, no, N, pen. So last sound is N. Next BELL, bell, lo, L. Last sound is of L. So now children, here are these two child sitting together on a tree branch और ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपस में ये एक दूसरे से पूछते हैं और बातें करते हैं। तो ऐसे ही आपको क्लास में भी पेयर बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो लेट्स सी। Child 1 is saying, what is the color of a parrot? A parrot is of green color. So what you will write here? A parrot is of green color. Next question of child 1 is, what is the color of a crow? Can you tell me the color of the crow? Yes, a crow is of black color. कैसे color का होता है crow? Black. Next question is, what is the color of a rat? Yes, a rat is gray in color. Now child 1 is again asking, what is the color of a peacock? Peacock का कलर क्या होता है? Oh, it has many colors. Peacock के पास तो बहुत सारे कलर्स होते हैं. Now finally we reach the last part of this chapter, that is fun time. Here can you see the elephants? आपको इस पिक्चर में elephants दिख रहे हैं? Where can you see them? हमें बताना है कि हमें elephants कहाँ कहाँ दिखते हैं. So children, number 1 is outside the window. ये तो I guess सभी को visible होगा. So children, if you look carefully, तो आपको इन कुशन पे यहाँ भी एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे और इस बेडशीट पर भी एलिफेंट है और यहाँ इस पॉट में यहाँ भी एक एलिफेंट है। चिल्ड्रन, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ एक बैग दिखेगा जिस पे एलिफेंट की पिक्चर बनी है। यहाँ एक फ्रेम है जिस पे एलिफेंट की ड्राइंग बनी है। यहाँ एक क्लॉक है जिसको एलिफेंट की शेप दी हुई है। यहाँ एक जार है अगेन जिसमें देखो, कैन वी सी द मोर पंख? यहाँ क्या है? मोर के पंख है और इस जार पे एक ब्लू कलर का एलिफेंट बना हुआ है। तो चिल्ड्रन, आई गेस हमने सारी जगह एलिमेंट्स देख लिए हैं और अगर अभी भी कोई रहता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। एंड इफ यू रियली एंजॉयड तो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तरु टोड्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।